کرسمس کا تہوار ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا مبارک دن ہے، کیونکہ کلمہ خدا مجسم ہو کر صداقت کا سورج بن کر ساری دنیا کو پر نور کرتا ہے۔ کلمہ خدا کا مجسم ہونا انسانی تاریخ کا ایک انوکھا اور منفرد واقعہ ہے، کیونکہ خدا خود آکاش سے دھرتی پر اپنے بنائے گئے شبیہ یعنی انسانوں سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ سے بحال کرتا ہے۔ کرسمس کا تہوار امن کا تہوار ہے، یہ صلح اور سلامتی کا تہوار ہے، یہ پیار اور محبت کا تہوار ہے۔ ویسے تو دسمبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی پوری دنیا کے گلی کوچے اور بازار روشنیوں سے جگمگا اٹھتے ہیں، اور اس مسرت موقع پر بہت سارے نشانات اور علامات استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں کرسمس اسٹار مختلف گھروں کی زینت بنتا ہے، تو دوسری طرف گرجا گھروں میں اور ہمارے خاندانوں میں چرنی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ کہیں پر کرسمس ٹری سجایا جاتا ہے تو کہیں پر سینٹا کلوز کی آمد ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈھیروں علامات ہیں جو کرسمس کے موسم کو پرمانی بناتی ہیں۔ عزیز ناظرین، نشانات اور علامات نہ صرف ہماری معاشرتی زندگی میں اہمیت کے حامل ہیں، بلکہ یہ ہماری مذہبی رسومات اور مختلف عبادات میں اور تعلیم و تربیت میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کے اس خصوصی پروگرام میں کرسمس سے متعلقہ نشانات اور علامات کا تاریخی پس منظر اور ان کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ عزیز ناظرین، میں آج آپ کو بہت ہی مختصر طور پر چرنی کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیتھولک چرچ جو ہے، جہاں پر بائبل مقدس کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اسی طرح کیتھولک چرچ جو ہے اپنی مقدس روایات کو بھی تھامے ہوئے ہے۔ تو آج جو میں چرنی کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، حقیقی طور پر دیکھا جائے تو بائبل میں کلام مقدس میں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے اس منظر کے بارے میں جب ان کی پیدائش ہوئی وہ پڑھتے ہی ہیں، لیکن روایات جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کیسے چرنی بنانے کا جو ہم اپنے گھروں میں بناتے ہیں، چرچز میں بناتے ہیں، یا اداروں میں، یا جہاں جہاں ہم مسیحی لوگ رہتے ہیں وہاں پر یعنی چرنی کو بنا کر اس منظر کو، اس واقعہ کو یاد کیا جاتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ تو اسی طرح یہ ہماری مقدس روایات کا حصہ ہے۔ آج میں مختصر طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا جو ہے آغاز کب ہوا۔ تو اس کا آغاز جو ہے، چرنی بنانے کا آغاز جو ہے، یہ 13ویں صدی میں ہوا۔ اس کے بارے میں 1223 سال جو ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 1223 میں اس کا آغاز ہوا، اور اس کا آغاز کرنے والے جو ہیں وہ مقدس فرانسس آف اسیسی ہیں۔ انہوں نے اس کا آغاز کیا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے، روایات بتاتی ہیں کہ مقدس فرانسس آف اسیسی جو ہیں، انہوں نے 1223 میں اپنے ایک دوست اور ایک قریبی، جو ان کے بہت ہی قریب ان کا دوست تھا، اس کا نام جان تھا، انہوں نے اس کے ساتھ اپنی یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں بالکل ویسے ہی جیسا کہ بیت لحم میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، اسی واقعے کو میں اپنے لوگوں کے درمیان بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس منظر کا نظارہ کر سکیں۔ تو اس طرح انہوں نے جان کے ساتھ بات چیت کی، اور پھر جو جان جو ہے ان کا دوست وہ جاتا ہے، اور اسیسی کے مقام پر ہی وہ اپنے دوستوں اور اپنے ہمسائے اور جو قریبی اس کے لوگ تھے وہ ان سب کو ساتھ اکٹھا کرتا ہے، اور جو مقدس فرانسس آف اسیسی نے جو چیزیں اس کو بتائی کہ ان میں یہ چیزیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کی ہدایات کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے جیسے بوسہ جس کے اوپر خداوند یسوع مسیح بچہ یسوع کو رکھا گیا اس سردی کے موسم میں، اور پھر وہاں پر جو گدھے کا ذکر ملتا ہے جو اپنی سانسوں سے اس کو گرمائش دیتا ہے، یا بیل جو ہے وہاں پر، یا بھیڑ بکریاں جو ہیں وہاں پر بتائی جاتی ہیں کہ وہ اپنی سانس سے خداوند یسوع مسیح کو یعنی گرمائش دیتے ہیں تاکہ اسے سردی کے اس موسم میں اسے محفوظ رکھا جا سکے۔ تو اس طرح سے یہ تمام جو چیزیں ہیں، جان جا کر اپنے دوستوں ہمسایوں کے ساتھ ان ساری منظر کو وہاں پر بناتا ہے، اور اسی طرح بعد میں ٹھیک کرسمس کی شام جو ہے
मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, उस सीसी के उसी मकाम पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर वो सबसे पहले तो अपना शमासाना लिबास जो है, यानी डीकन थे तो वो अपना लिबास पहनकर खुदा का कलाम सुनाते हैं, और इसके बाद जाकर वो चरनी में जो बनाई गई होती है बिल्कुल उनकी दी हुई हदायत के मुताबिक, तो वो वहां पर जाकर जब बच्चा यीशु का नज़ारा करते हैं, उसे छूते हैं, तो बिल्कुल ऐसा मंजर होता है कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह हकीकी तौर पर उनकी वहां पर मौजूदगी है। तो इससे एक रूहानियत जो है उनको ज़ाती तौर पर भी और लोग भी उस रूहानियत का तजर्बा करते हैं। तो इस तरह से मुकद्दस फ्रांसिस जो है उनसे ये रवायत जो है चलने की, इसका आगाज होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि 13वीं सदी से लेकर आज के दौर तक भी, आज तक हम मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर मसीही लोग आबाद हैं, वो क्रिसमस के या आमद के दिनों के दौरान जो है वो चरनी बनाते हैं, और बिल्कुल बैतलहम में बच्चा यीशु की पैदाइश के उस तजर्बा को जो है वो याद करते हुए उस मंजर कशी को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, नज़ारा करवाते हैं, ताकि उस हकीकी जो है हकीकी जो मंजर का तजर्बा कर सके। तो इसलिए आज जो मैं आपके साथ ये बिल्कुल चरनी के हवाले से मुख्तसर सी इसकी तारीख और इसका आगाज शेयर कर रहा हूँ, और यही हमें मुकद्दस रवायात बताती हैं कि मुकद्दस रवायात जो हमें रसूलों के जरिए से, मुकद्दसीन के जरिए से हासिल होती हैं। तो इस तरह से चरनी का आगाज होता है। क्रिसमस ट्री क्रिसमस डेकोरेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। क्रिसमस ट्री को सदाबहार दरख्त के साथ सजाया जाता है, और जो हम बाजार से क्रिसमस ट्री लाते हैं वो भी सदाबहार दरख्त की तरह होता है। खुदाम यीशु मसीह मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक अंजील में उसके 15वें बाब में फरमाते हैं कि हकीकी ताक मैं हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है वो बहुत फल लाता है, और जो मुझ में कायम नहीं रहता वो काट दिया जाता है। हकीकी ताक मैं हूँ और तुम डालियाँ हो, और तुम मुझसे जुदा रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। क्रिसमस ट्री हमेशा की जिंदगी की अलामत है। ये सरसब्ज़ो शादाब और कभी ना मुरझाने वाला दरख्त है। इसलिए खुदाम यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी का दरख्त है, जो हम सबों को निजात देने के लिए इस जमीन पर उतर आता है। क्रिसमस ट्री का सबसे पहले जो उसके बनाने का आगाज है, मुकद्दस बोनीफेस जर्मनी के एक शहर गाइसमर से इसका आगाज करते हैं, और वो थोर के दरख्त को फिल ट्री के में तब्दील करके दुनिया का पहला क्रिसमस ट्री सजाते हैं। क्रिसमस ट्री का बाकायदा आगाज 16वीं सदी में होता है, जब एक घर के अंदर और घर के बाहर दरख्तों को बहुत सारे टॉफियों से, गिफ्ट्स के साथ और लाइट्स के साथ जो है वो सजाया जाता है, और इस तरह क्रिसमस ट्री का बाकायदा आगाज होता है। मलका बरतानिया का जो शोहर है शहजादा एल्बर्ट, वो जर्मनी से अपने साथ क्रिसमस ट्री को इंग्लैंड में लेकर आते हैं। 1848 की खबरों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इंग्लैंड का शाही खानदान शाही महल में विंस्टर के अंदर जो है क्रिसमस का जो दरख्त है उसके चौगिर्द जमा होकर क्रिसमस की खुशियां मनाते हैं, और वो इसको पूरी सल्तनत में फैलाने का अहद भी करते हैं। क्रिसमस ट्री को यूले ट्री भी कहा जाता है, जो हमेशा सरसब्ज़ो शादाब रहने वाला दरख्त है। क्रिसमस ट्री को जो है बहुत सारी चीज़ों के साथ डेकोरेट किया जाता है। जब हम क्रिसमस ट्री पर स्टार और बॉल लगाते हैं तो ये सारी कायनात के इकट्ठे होने की अलामत है, और जब हम इस पर तोहफ़े सजाते हैं, लगाते हैं, तो इस बात को जाहिर करते हैं कि इस दरख्त से कोई भी गिफ्ट जो है वो ले सकते हैं। क्रिसमस ट्री तमाम क्रिसमस की जो रसूमात हैं, जो सेलिब्रेशन है, उसमें मरकजी हैसियत रखता है। जब हम अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं तो ये हमें हम-आहंगी, प्यार, मोहब्बत और इत्तेहाद कायम करता है। जब हम सब खानदान मिलकर क्रिसमस ट्री को सजाने में अपना किरदार अदा करते हैं तो इस तरह हम क्रिसमस की खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं।
تو آئیں ہم سب جہاں جہاں بھی کام کرتے ہیں، جن جن اداروں میں کام کرتے ہیں، اپنے گھروں میں، گرجا گھروں میں کرسمس ٹری کو سجائیں، جو زندگی کی علامت ہے، جو خوشی کی علامت ہے، اور جو ہم سب کو ایک کرنے کی علامت ہے۔ مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 6 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے کہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دایاں ہاتھ کرتا ہے تیرا بایاں ہاتھ نہ جائے۔ اسی طرح ہم جب سینٹا کلاس کو دیکھتے ہیں کہ اس موسم میں ہر طرف جو ہے سینٹا کلاس، یا پاکستان میں جسے ہم کرسمس بابا کہتے ہیں، تو یہ مقدس نکلس تھے جو 4 صدی میں تھے، جو بہت ہمدرد اور خاص طور بچوں کے لیے جو بہت احساس رکھتے تھے، ان کے لیے جو ہے مختلف چیزیں تحفے تحائف لاتے تھے۔ اسی طرح جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سینٹا کلاس ڈچ زبان کا لفظ جسے سنٹر کلاس کہتے ہیں وہاں سے نکلا۔ آہستہ آہستہ جب یہ بچے اور دوسرے لوگ بولتے رہے، وہاں سے سینٹا کلاس میں جو ہے آواز زبان میں جو ہے وہ ہم پر جو ہے منظر عام پر آتا ہے، تاکہ جو ہے ہم اسے جو ہے وہ سنٹر کلاس سے سینٹا کلاس اور مختلف جب زبانوں میں دیکھتے ہیں یا اپنی زبان پاکستان میں دیکھتے ہیں اسے ہم کرسمس بابا کہتے ہیں۔ تو کرسمس بابا جو ہے اس کا جو کردار جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں مقدس نکلس، جنہوں نے، جس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا، جو لوگوں کی، غریبوں کے لیے احساس رکھتے ہیں، اپنے دل میں ان کی مدد کرتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ جب وہ ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ پریشان ہے، رو رہی ہے اپنی لڑکیوں کے جہیز کی وجہ سے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چپکے سے جو ہے ان کی جو جرابیں ہیں ان میں جو ہے سونے کے سکے ڈال جاتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے مدد کی۔ لیکن جس طرح میں نے آیت بھی پڑھی تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح بھی کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اسی آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا کہ تاکہ کوئی بھی نہ جانے کہ وہ کس طرح جو ہے دوسروں کی مدد کر سکتے۔ اس طرح آج کے دور میں یہ فیشن بن چکا ہے، ہر طرف ہم دیکھتے ہیں سینٹا کلاس یا کرسمس بابا کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک فیشن بن چکا ہے، لیکن یہ در حقیقت یہ فیشن نہیں بلکہ یہ ایک احساس ہے جو سمبل ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کرسمس کی خوشیوں میں شامل ہونے سے پہلے جو غریب غربا ہیں ان کی مدد کرنی۔ مقدس متی کے مطابق انجیل اس کے 2 باب میں درج ہے، اور دیکھو وہ ستارہ جو مشرق میں انہیں دکھائی دیا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا، اور وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ عزیز ناظرین، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت کئی مجوسی بیت لحم کے ستارے کا پیچھا کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح تک پہنچے اور جھک کر اسے سجدہ کیا۔ اس ستارے کو بیت لحم کا ستارہ بھی کہا جاتا ہے، اسے مجوسیوں کا ستارہ بھی کہتے ہیں، اور روایتی طور پر اس ستارے کو پیشن گوئی کا ستارہ بھی کہا جاتا ہے۔ عدد کی کتاب اس کے 24 باب اس کی 17ویں آیت میں درج ہے، یعقوب سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل سے ایک عصا اٹھے گا۔ بے شک وہ ستارہ، وہ عصا خداوند یسوع المسیح ہے۔ جبرائیل فرشتہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ یعقوب کے گھرانے پر وہ ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ عزیز ناظرین، کرسمس کا یہ نشان، یہ علامت ایک آسمانی علامت ہے جو خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے پر نمودار ہوئی۔ اگر ہم دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یونانی، عبرانی اور رومیوں کا یہ ایمان تھا کہ جب بھی کوئی اہم شخصیت کی پیدائش ہوتی ہے یا کوئی تاریخی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اجرام فلکی پر اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر بھی اس ستارے کا نمودار ہونا، اس ستارے کا ظاہر ہونا اجرام فلکی میں ایک تسلیم شدہ واقعہ قرار دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ستارہ ایک دمدار ستارہ تھا جو کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوا تھا، اور کئی مجوسی اس ستارے کا پیچھا کرتے ہوئے بیت لحم تک پہنچے تھے۔ ناظرین، اگر ہم اس ستارے کی اہمیت اور اس کی انفرادیت پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ستارے نے کس قدر بہترین انداز میں اپنا بشارتی کردار ادا کیا۔
और आज भी ये सितारा बहुत सारे लोगों को हमारे ईमान की गवाही देता है। आज भी बहुत सारे मोमिनीन क्रिसमस के इस पुरमसरत मौका पर अपने घरों की छतों पर स्टार्स लगाकर इस बात की गवाही देते हैं, वो अपना ईमान दूसरों के साथ शेयर करते हैं कि हमारा निजात दहिंदा मुनज्जी दो आलम खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए हैं। अजीज नाज़रीन, हमें भी बैतलहम की सितारे की तरह चमकते रहना है और हमें भी मजूसियों की तरह बहुत सारे लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाना है, ताकि वो भी खुदावंद यीशु मसीह के नूर से मुनव्वर हों और खुदा की बादशाहत और उसका नूर पूरी दुनिया में। क्रिसमस के मौके पर तोहफे लेना और तोहफे देना एक तारीख को अपने अंदर समोए हुए है। इसकी रवायत हमें खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश और चढ़ने से मिलती है, जब बादशाहों ने और मजूसियों ने खुदावंद यीशु मसीह को तोहफे पेश किए, यानी मोर, लुबान और सोना। क्रिसमस के मौके पे तोहफे देने और लेना हमारे थॉटफुलनेस को, एप्रिसिएशन को, लव और केयरिंग को ज़ाहिर करता है, जो कि हम एक दूसरे को देते हैं। इसके अलावा ये हमें निशान और ये सिंबल हमें ये हिदायत करता है, हमें ये दर्स देता है कि हम दूसरों के साथ जो इन तोहफों को आपस में बांटें, ताकि ये क्रिसमस की खुशियाँ हम दूसरों के साथ मिलकर दुबाला करें। इसके इन मुक़द्दस अय्याम में हम एक दूसरे को केक पेश करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस पर जब हम केक पेश करते हैं, इसके पस मंज़र के बारे में मैं बयान करना चाहता हूँ कि ये 16वीं सदी में ये अंग्रेज़ी रवायत है जो इंग्लैंड, आयरलैंड, चाइना और फिलिपाइन से शुरू होती है। इधर के लोगों ने ऐसा किया कि उश, मेवाजात, मक्खन, शहद और इसी तरह दीगर चीज़ें मिला के एक केक बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा क्रिसमस केक। और ये इस दिन क्या करते थे, सारे लोग ख़ानदान इकट्ठे होते थे, 24 की रात को बनाते थे और 25 को सब मिलकर खाते थे, एक दूसरे में बांटते थे और खुदा का शुक्र अदा करते थे और खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियाँ मनाते थे। और इसी तरह ये 16वीं सदी के बाद 17वीं 18वीं सदी में ऐसा हुआ कि लोग क्या करते हैं कि ये रात को बनाते थे और अपने ख़ानदान के साथ मिलकर क्रिसमस वाले दिन खाते थे और एक दूसरे में बांटते थे। 19वीं सदी में क्रिसमस केक को अरूज मिला और ये रस्म जो है परवान चढ़ी और लोगों ने मजहबी, समाजी और सियासी तकरीबात में और सरकारी तकरीबात में क्या किया है कि क्रिसमस केक कटिंग करते थे, लोगों में बांटते थे और खुदावंद का शुक्र अदा करते थे। और इसी तरह हम सब खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियाँ मनाते हुए आज भी क्रिसमस केक काटेंगे, क्योंकि क्रिसमस केक जो है ये मोहब्बत, खुशी और शेयरिंग के तौर पर हम ये काटते हैं। क्योंकि जब हम खुशी मनाते हैं तो हम खुशी मनाते हैं खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की, जो खालिक से मखलूक बन जाता है, जो आसमान को छोड़कर ज़मीन पे आता है ताकि हम उसके जन्मदिन की खुशियाँ मना सकें। और इसके साथ शेयरिंग, इसलिए जब भी हम केक काटते हैं तो केक काटने के बाद एक दूसरे में बांटते हैं और इस रस्म से हमें ये पैगाम मिलता है कि हमने अपनी मोहब्बतें, अपनी खुशियाँ एक दूसरे में बांटनी है। और खुदावंद यीशु मसीह की उस बात को हमने याद रखना है जो मुक़द्दस मत्ती के अंजील 25वें बाब में खुदावंद फरमाता है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पीने को दिया, मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनने को दिया। इन दिनों में जब कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, मजबूर हैं, भूखे हैं, तो हमने क्या करना है, उनकी राशन की सूरत में मदद करनी है, हमने उनकी माली मदद करनी है, उनको कपड़े लेके देना है, क्योंकि हुक्म अजीम ये है कि तू अपने हमसाए को अपनी मानत प्यार कर। खुदावंद को भी अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से प्यार करना और अपने हमसाए को भी अपनी मानत प्यार करना। और हम सब इस दुनिया में एक दूसरे के हमसाए हैं और क्रिसमस का ये त्यौहार हमें ये मौका देता है कि हम इस केक की रस्म से ये सीखें कि हम एक दूसरे में खुशी बांटें, एक दूसरे में खुदा की मोहब्बत बांटें और एक दूसरे में खुदा की मोहब्बत को तलाश करें। और मैं तमाम नाज़रीन को, जितने लोग
ये प्रोग्राम देखते हैं उनको दिल की गहराइयों से क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारकबाद पेश करते हैं। क्रिसमस की सजावट आमद की तैयारी की तरफ इशारा करती है। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि लोग खरीदो-फरोख्त करते, मुख्तलिफ हॉल्स को सजाते और हर बार अछूते अंदाज में सरगर्म हैं। कुछ लोगों के लिए कीमती ज़ेवरात की नुमाइश का मौका है, जबकि दूसरों के लिए ये हर चीज़ की ऊपर वाली तय को अच्छी तरह मुख्तलिफ किस्म की सजावट वाली चीज़ों से ढांपना है, मसलन दरवाजे, खिड़कियाँ, बालकोनियाँ, सीढ़ियाँ वगैरह। ये साल में सजावट के लिए एक ख़ास और उम्दा वक्त है जो इस बात की अक्कासी करता है कि ये वक्त हर किसी के लिए खुशियाँ और नेक ख्वाहिशात लेकर आता है। हाथ से सजावट का सामान बनाना भी एक अछूता मशवरा है जिससे बचत की जा सकती है। चीज़ों को तरतीब से सजाना भी एक फ़न है और जब कोई पुरानी अशिया को खरीद कर इन्हें सजाता है तो इस चीज़ की दिलकशी में और भी इजाफा हो जाता है। घरों की सजावट क्रिसमस से जुड़ी एक पुरानी रवायत है। इसे जब भी क्रिसमस की सजावट की बात की जाए तो वो लामहदूद है। सजावट का असल मतलब ये है कि हम माहौलियात में ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लें, जिसके लिए बहुत सी चीज़ें दरकार हैं जो ख़ास अहमियत की हामिल हैं। इनमें चंद मशहूर तरीन ये हैं: मोमबत्तियाँ, फूल, तस्वीर, क्रिसमस कार्ड, सांता क्लॉज की मुख्तलिफ निशान, जूती, बूट, जुराबें, बड़ा बैग, सफ़ेद दाढ़ी और तोहफे, फरिश्ते, कार्ड्स, रिबन्स, टॉफ़ियों के डिब्बे, रोशनियाँ, रीत और शीशे के टुकड़े शामिल हैं। ऊपर बताई गई तमाम चीज़ें रवायती तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन नई चीज़ें ममनू नहीं। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख्यालात और कुछ नई दिलचस्प चीज़ों के साथ सामने आना है और खुशी का माहौल बनाना है। अजीज़ मोमिनीन, बेल की आवाज़ को सुनना एक खुशगवार तजर्बा। अमूमन चर्चेस में एक बड़ी बेल लगाई जाती है जो पाक से पहले बजाई जाती है, जो इस बात का ऐलान करती है और दावत देती है कि आओ हम अपने खुदा के हजूर हाजिर हों, इबादत करें और आजिज़ाना दिल के साथ पाकमास में शामिल होकर शुक्रगुजारी करें। इसमें हम कह सकते हैं कि इबादत में जब बेल बजाई जाती है या जिंगल बेल गाया जाता है तो ये यीशु मसीह के पैदा होने का ऐलान है। ये पाकमास के दौरान बेल बजाकर क्रिसमस का या यीशु का पैदा होने का ऐलान करना चर्च की कदीम रवायात में से एक है। याद रखें, जब हम इस अलामत को क्रिसमस के तनाज़र में देखते हैं और अपने घरों और चर्चों में इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने ईमान को तरोताज़ा करते हुए खुदा की इलाही मोहब्बत को जो यीशु मसीह की सूरत में इस दुनिया में पैदा होती है उसे हम अपने दिलों में महसूस करते हैं। यीशु मसीह पैदा हुआ है, आओ इस भारी निजात को मनाएं और ये खुशी दूसरों में बांटें। क्रिसमस के मौका पर क्रिसमस की मुबारकबाद देने और लेने का सिलसिला जारी और सारी रहता है। आज के इस दौर में जब ज़राए इब्लाग ने बहुत तरक्की कर ली है, लोग सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर्स और मैसेजेस के थ्रू लोगों से रवाबित कायम करते, उन्हें दुआओं में पैगाम भेजते और क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन आज भी क्रिसमस कार्ड्स की अहमियत और खूबसूरती बरकरार है। हम अक्सर क्रिसमस कार्ड्स पर पाक खानदान, चरनी, क्रिसमस ट्री और कब्बी हिरन जैसी तस्वीर देखते हैं। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों, आज मैं आप लोगों के साथ क्रिसमस की इन रंगारंग खुशियों के दौरान में क्रिसमस कैरल के हवाले से कुछ मालूमात बांटना चाहता हूँ। मैं बताता चलूँ कि क्रिसमस कैरल या कैरल का जो लफ्ज़ है ये फ्रांसीसी ज़ुबान से निकला है। कहा जाता है कि पुराने वक्तों में ये कैरल जब गाए जाते थे तो मुख्तलिफ तकरीबात में भी इनका इस्तेमाल होता था और ये सिर्फ गाए नहीं जाते थे बल्कि डांस की सूरत में भी पेश किए जाते थे। फिर 1600 में इस बात को मद्देनज़र रखा गया कि हम क्रिसमस कैरल जो है इसको खाली क्रिसमस के लिए मखसूस कर दें और तब से इस क्रिसमस कैरल के दिनों में ये कैरल गाए जाते हैं और इसमें से डांस की रस्म को निकाल दिया गया और सिर्फ गाने की रस्म को अहमियत दी जाने लगी। फिर
मज़ीद ये हुआ कि वक्त के साथ साथ जब सोचा गया कि कैरल को और कैसे ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए, फिर 1700 से 1800 की सदी में ऐसा होने लगा कि हमारे पास बहुत मशहूर लिखारी आने लगे, जिनके मशहूर गीत आज के दिन तक हम लोग गाते हैं, जिनमें हार्क द हेरल्ड एंजल सिंग और लिटिल टाउन ऑफ बेथलेहम और मशहूर व मारूफ कैरल साइलेंट नाइट भी मुतारिफ कराया गया। एक फ्रांसीसी मौसीकार ने मशहूर कैरल लिखे जिनके उन्वान थे जिंगल बेल्स और वाइट क्रिसमस। ये भी अपने आप में बहुत मशहूर हुए, अपने दौर में इनकी खासी अहमियत है। हमारे पंजाबी या हमारे इस कल्चर के मुताबिक यहाँ के मशहूर मारूफ पीडी रफ़ाइल साहब ने बहुत सारे अच्छे पंजाबी और उर्दू क्रिसमस कैरल और गीत लिखे और आज के दिन तक ये रवायत यहाँ पर चलती है। हर साल न जाने कितने सारे फ़नकार अपने आप को यीशु मसीह की आमद के लिए, इस खिदमत के लिए पेश करते हैं और हमेशा बहुत सारे क्रिसमस कैरल यहाँ पर पेश किए जाते हैं। लेकिन बताता चलूँ कि कलाम मुक़द्दस की रूह से सबसे पहला कैरल जो है वो फरिश्तों ने खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीन पर आमद पर आसमान पर गाया था, और उस से बड़ा कैरल आज तक ना कोई हो सकता है, ना हमने सुना है और ना ही सुनेंगे। हम सब अपनी अपनी खिदमत करते चले जाते हैं और क्रिसमस को रंगारंग बनाते जाते हैं, ताकि क्रिसमस कैरल के साथ, अपनी आवाज़ों के साथ, अपने सांसों के साथ हम यीशु मसीह की आमद को चार चांद लगा सकें और अपनी ज़िंदगी में दूसरों के साथ खुशियाँ बांट सकें।